ओके, विल कंटिन्यू विद गुप्ता एम्पायर। तो इसमें हम आर्ट का पार्ट करेंगे। सो आर्ट का क्या स्टेटस था गुप्ता एम्पायर में? सो दिस पीरियड इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, एंड because of many reasons, because of economic reasons, developments in the because of developments in art and literature, developments in new forms of administration, social developments, बहुत सारी चीजें थी. So this period is regarded as the golden age of Indian culture. The high point of cultural creativity and magnificent and creative architecture, sculpture and painting. Now, the wall paintings of Ajanta caves in central Deccan are considered among the greatest and most powerful works of Indian art. The paintings in the cave represent the various lives of Buddha, but are the best source we have of the daily life in India at that time. Now, there are 48 caves making up Ajanta, most of which were carved out of the rocks between 460 and 480. Between 460 and 480 AD and are filled with Buddhist sculptures. तो अब ये जो गुप्ता पीरियड में ही बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के लिए इतनी सारी के अजंता पेंटिंग्स हुई, तो इसका मतलब ये है कि गुप्ताज आल्सो प्रमोटेड बुद्धिज्म, जबकि वो उन्होंने खुद एम्ब्रेस नहीं किया था, बट बुद्धिज्म आल्सो फ्लरिश ड्यूरिंग द गुप्ता रूल, क्योंकि अजंता की जो पेंटिंग्स है, कार्विंग्स है, वो सारी बुद्धा से रिलेटेड है. The rock temples at Elephanta near Bombay contains a powerful 18-foot statue of the three-headed Shiva, one of the principal Hindu gods. Now each head represents one of Shiva's roles, that of creating, that of preserving, and of destroying. So the period also saw dynamic building of Hindu temples. All of these temples contain hall and a tower. लेकिन एक चीज है कि इनकी टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो थी वो उतनी इलेबोरेट नहीं थी जैसी साउथ इंडिया में बाद में बनी. और टेम्पल्स, यू कैन सी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि ये कल्चर जो है टेम्पल्स का, मूर्ति पूजा का और मूर्तियों को मंदिरों में रखने का, ये गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड शुरू हुआ. उससे पहले हिंदुइज्म में कोई टेम्पल्स नहीं हुआ करते थे. इनफैक्ट उसको हिंदुइज्म बोलते भी नहीं थे, इट वॉज अ वैदिक रिलीजन. हाँ. सो ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा was recovered from Sultanganj. Then Fahasin saw an over 25-meter copper image of Buddha, which is not traceable. तो अपने फहासिन ने अपनी किताब में इस किताब इसके बारे में लिखा है कि एक 25 मीटर ऊंची कॉपर की बुद्धा की इमेज थी, लेकिन आज तक वो कहीं मिली नहीं. एक्सकेवेशंस में या पता नहीं कहीं पे दबी होगी, कहीं ना कहीं आगे कभी मिलेगी, लेकिन उसने अपनी किताब में लिखा है तो इसका मतलब होगा, तभी तो लिखा है. और अब वो ऐसी चीज है जो कोई वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी. Now, lofty stone image of Buddha, Bamiyan in Afghanistan, belong to Gupta period. Among the best specimen of the image of Buddha is a seated Buddha image of Sarnath, which depicts the Buddha preaching the Dhamma. For the first time, we get images of Vishnu, Shiva, and other gods. The fragmentary remains of Vishnu temple at Devgarh is an example of the most ornate and beautifully composed Gupta temple building. Then another fine example of Gupta architecture is found in the Vaishnavite Tigawa temple at Jabalpur, 415 AD ka. Then Bhita in Uttar Pradesh was a number of has a number of ancient Gupta temples. Some of the caves at Ajanta may be assigned to the period of Guptas. अब अजंता की जो केव्स है वो गुप्ता के भी पीरियड में थी, चालुक्यस के भी पीरियड में थी, और कई सारे सतवाहनास के भी पीरियड में थी. सो उसमें कई सारी डायनेस्टीज का कंट्रीब्यूशन है. देन आर्किटेक्चर. नाउ द गुप्ता पीरियड वाज पुअर इन आर्किटेक्चर, जो हमने पहले भी बात की थी, बट स्टिल सम आर्किटेक्चर इज फाउंड फ्रॉम द गुप्ता पीरियड. So now the doctrine of bhakti and growing importance of image worship led to the construction of freestanding temples with its sanctuary, yani Garbhagriha, in which the central cult image was placed.
तो जैसे तुम कभी भी किसी मंदिर में जाओगे तो वहां पे एक हॉल रहता है एंड देन एक छोटा सा घर रहता है जिसमें मूर्ति रहती है, जो प्रिंसिपल डीटी रहती है वो उसके अंदर रहती है. सो दैट इज कॉल्ड द गर्भगृह. सो ये जो कल्चर है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स बेसिकली स्टार्टेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. Then the Gupta period marks the beginning of Indian temple architecture. Now the temples are simple and unpretentious structures, but their bearing upon later developments is of great significance. The following well-defined types may be recognized. तो उनके temples की कुछ खासियतें थी, जैसे flat roofed square temple with a shallow pillared porch in front, then flat roofed. Now these things also you have to keep remember because they are part of art and culture which is there in your syllabus. So flat roofed square temple with a covered ambulatory around the sanctum and preceded by a pillared porch. uh, preceded by a pillar porch, sometimes with a second story above. Then there is a square temple with a low and squat shikhar matlab tower above. Rectangular temple with an apsidal back and barrel, vaulted roof above. Then circular temple with shallow rectangular projections at four cardinal places faces. So these kind of temples were found during the Gupta era. Then religious developments under the patronage of Gupta ruler, Vaishnavism became very popular. That means the worship of Vishnu. Now the gods were activated by their unions with their respective consort. जैसे Lakshmi got her association with Vishnu during Skandagupta's time, and Parvati got her association with Shiva during Kumar Gupta one's time. तो now you can see, अब जैसे शिव भगवान थे, विष्णु भगवान थे, लेकिन इनकी बीवियां नहीं थी. ये बाद में ऐड हुई. जैसे पार्वती को शिव के साथ एसोसिएट कर दिया और लक्ष्मी को विष्णु के साथ. ओके, फिर उससे रिलेटेड विष्णु पुराण, शिव पुराण, इन सब में इनसे एसोसिएटेड कहानियां हैं. फिर अब शिवा के केस में तो उसके आगे भी बढ़ गए, जैसे कि गणपति वॉज बॉर्न. ओके, सो गणपति इज द सन ऑफ शिवा एंड पार्वती. तो ये चैप्टर्स भी बाद में ऐड होने शुरू हुए. ओके, so you can see that there is Hinduism has gone a metamorphosis in which uh, gods and goddesses have been added and also deleted. So this was the period of evolution of Vajrayanism and the Buddhist tantric cults. तो अब हमने बोला था कि बुद्धिज्म के जो दो मेन थे वो तो दो मेन ब्रांचेज जो है हीनयान और महायान, वो तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में कनिष्क ने जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी उसमें स्प्लिट हो गया था. लेकिन ये वाला जो एक तांत्रिसिज्म बेस्ड बुद्धिज्म था, यानी झाड़ फूक का कल्चर और वो भूत प्रेत, वो सब भी जो हिंदू बुद्धिज्म में डाल दिया, ये तो इनफैक्ट ये वन ऑफ द मेजर रीजंस था कि बुद्धिज्म बर्बाद हो गया हिंदुस्तान से. तो वज्रयानिज्म also started during Gupta period and it got further consolidated in the 6th and 7th century ADs. Then idol worship became a common feature of Hinduism from Gupta period onwards. Now ये देखो, idol worship became a common feature from Gupta period onwards. यानी इसका मतलब क्या था कि मूर्ति पूजा, idol worship यानी मूर्ति पूजा, तो वो हिंदुइज्म में पहले नहीं थी. और हमने देखा भी कि वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में कौन सी मूर्तियां थी. पहली बात तो मूर्ति कला ही नहीं थी इंडिया में, मूर्तियां बनाना कहाँ आता था. तो टेम्पल आइडल वर्शिप एंड टेम्पल कल्चर ये हिंदुइज्म का ओरिजिनल पार्ट नहीं है. सो हिंदुइज्म कैन ऑल्सो मैनेज विदाउट देयर प्रेजेंस, बट नाउ हिंदुइज्म हैज बीन रिड्यूस्ड टू आइडल वर्शिप एंड विजिटिंग टेम्पल्स. ओके, सो हिंदुइज्म का फिलोसॉफिकल बेसिस खत्म हो गया है. देन लिटरेचर. नाउ द ग्रेटेस्ट राइटर of the time was Kalidas. Now, poetry in the Gupta age tended towards few genres. So, जिसमें religious and meditative poetry थी, lyric poetry, narrative histories. The most popular of the secular literatures थी narrative, यानी narration करना. Then जिसमें कि कई सारी biographies थी. Okay, we have seen some important literatures of Gupta age.
Now, the greatest mathematician of India, Aryabhat, also belongs to this age. Okay, so Aryabhat also belonged to Gupta period. Then the Panchatantra and Kamsutra were written during this period. Kamsutra was written by Vatsyayan. Now, this again falls is a part of the secular literature that was composed during Gupta period. Secular ka matlab which is not related to religion. The Nalanda University in Bihar came to the fame during Gupta rule only. So Nalanda University, as you know, is a Buddhist university. तो और फिर इसने समुद्रगुप्त ने महेंद्र वर्मन को श्रीलंका का जो किंग था उसको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाने की भी परमिशन दे दी थी और अजंता केव्स में भी बुद्धिज्म का ही है सब कुछ तो ये भी गुप्ता पीरियड से तो दिस ओनली शो दैट these are some of the things that show that Gupta rule was basically a secular rule. It was not a hardcore Hindu or Vedic rule, Vedic religion based rule. Okay, then trade and coinage. The gold content in gold content Gupta coins are not as pure as the cushions. Now, the Guptas also issued good number of silver coins for local exchange. Now, Gupta copper coins are very few as compared to the cushions. We show that the use of money did not touch the common people. और वैसे भी कॉमन पीपल जो यूज डे टू डे इसमें करेंगे वो गोल्ड कॉइन्स थोड़ी ना करेंगे. तुम 10 किलो आटा खरीदने गेहूं खरीदने मार्केट में जाओ उसका गोल्ड कॉइन से थोड़ी ना उसको खरीद पाओगे क्योंकि दोनों की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है. So most of the common people still use the barter system of exchange during Gupta period, and in cities, copper coins and other things were used. And for higher value trades, maybe uska payment gold coins में होता होगा. Then Gupta period witnessed decline in the long distance trade, जिसके reasons हमने देख लिए. Okay, बताओ क्या reasons है? Type करो. Hmm? चैट बॉक्स में टाइप करो क्या रीजंस है ट्रेड खत्म होने के. ट्रेड खत्म होने के क्या रीजंस है. ये जो हमने पॉइंट किया गुप्ता पीरियड विटनेस डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड उसका क्या रीजन. यस प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन द रोमन एम्पायर और क्या रीजन है. अरे क्लास अटेंड कर रहे थे या सो रहे थे सब. और क्या रीजन है. क्यों वो रीजन नहीं है कि वो उनके हाथ से चला गया हुना इन्वेजन्स की वजह से जो गुजरात मालवा एरिया था वो भी तो एक रीजन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो उनका एक मेजर इफेक्ट आया. ओके हाँ देन trade with Roman Empire declined after the 3rd century AD. Now Indian merchants began to rely more heavily on Southeast Asian trade. Okay हाँ ओके इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो सकता है इन जनरल नहीं लेकिन मेजर रीजंस तो वही है ना पॉलिटिकल और द यूज ऑफ सिल्क वर्म्स इन रोमन एम्पायर इटसेल्फ. देन इंडियन मर्चेंट्स बिगन टू रिलाई मोर हेवीली ऑन द साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड यानी इस तरफ की कंट्रीज का जो ट्रेड था इंडोनेशिया मलेशिया साइड का तो रोमन एम्पायर के साथ तो ट्रेड खत्म हो गया था. देन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी so Aryabhat wrote Surya Siddhant now which is again a classic one of the most classic books in the world and the westerners that is the Europeans learnt
many things from this सूर्य सिद्धांत, लेकिन आर्यभट्ट को वो फेम नहीं मिला जो वो डिजर्व करता है. इनफैक्ट चाइना और इंडिया में बहुत, इट वाज चाइनीज सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन, दे वर रिपोजिटरीज ऑफ नॉलेज एंड वेरी हाई लेवल नॉलेज. तो वो फाइनली बेसिकली यूरोप में जो पहुंचाया वो अरब्स ने पहुंचाया. इट वाज द अरब्स हु मीडिएटेड दिस exchange of knowledge or transference of knowledge from इंडिया एंड चाइना टुवर्ड्स यूरोप. और फिर यूरोप ने उस पे मतलब विद ऑल दस देयर सोशल डेवलपमेंट्स, रैशनल आउटलुक, और उस पे एक उन्होंने रिसर्च और ये सब करके उसमें फिर एक बहुत बड़ा क्वांटम लीप ले लिया. फिर उस चक्कर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी वहां पर आई और बाकी की कंट्रीज फिर बहुत पीछे रह गई. अभी राइट नाउ वो जो डिफरेंस है वो कभी नहीं भर पाएगा. सो भरा भी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा. So they have now they have taken a quantum leap, and in terms of their economic growth, developments in education, science and technology. Okay. Now Aryabhatta wrote Surya Siddhant, which dealt with the epicyclic revolution of Earth, nature of eclipses, reckoning of time, etc. Then Aryabhatta calculated pi as 3.1416. ये जो exact value है pi की. What is a pi? pi क्या होता है? हाँ वही. सो ये जो, हाँ, सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल जो होता है, ये सर्कल का, ये किसी भी सर्कल का डायमीटर है. ठीक है. तो और ये उसका सरकमफरेंस हुआ. ये जो पूरा हम देख रहे हैं ये उसका सरकमफरेंस हुआ. ठीक है. तो सपोज ये x है सरकमफरेंस और ये डायमीटर को हम y मानते हैं, तो x अपॉन y, ये जो रेशो है किसी भी परफेक्ट सर्कल का, ये कांस्टेंट रहेगा. चाहे वो फिर वो इतना सा सर्कल हो, इतना बड़ा सर्कल हो, या इससे भी बड़ा हो, या पूरे अर्थ जितना बड़ा हो, या पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा, ये जो रेशियो है सरकमफरेंस और डायमीटर का, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट इज 3.1416. ओके. तो ये परफेक्टली कैलकुलेट किया था आर्यभट्ट ने उस जमाने में. एंड ही आल्सो कैलकुलेटेड द सोलर ईयर टू बी दिस मच. दैट मींस अर्थ टेक्स अराउंड दिस मच टाइम टू रिवॉल्व, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. वरना अब तुम देखो बाइबल में तो 16th सेंचुरी तक इसी चीज को मान रहे थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जबकि हमारा कितना आउटलुक रैशनल और साइंटिफिक था उस जमाने में, 4th सेंचुरी एडी में. लेकिन फिर भी इंडिया आगे नहीं बढ़ा. तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे क्यों नहीं बढ़ा. Now, he postulated that the earth was a sphere rotating on its own axis and revolving around the sun as well. So it was he who predicted, and predicted it correctly, that earth rotates on its axis and it also revolves around the sun. So this is called a heliocentric theory, and he postulated the exact causes of eclipses also. He propounded the heliocentric theory of gravitation, thus predating Copernicus by almost 1000 years. जो कोपरनिकस ने 16th सेंचुरी में बोला, वो इसने 1000 साल पहले बोल दिया था. And Aryabhatta's magnum opus, the Aryabhatiya, was translated into Latin as early as 13th century. तो ये आर्यभट्टीय में से, अब ये सब नॉलेज अरब की वजह से यूरोप में पहुंचा, तो ये आर्यभट्टीय में को पढ़ के कोपरनिकस ने अपना दिया होगा, क्या पता, किसको पता. लेकिन वर्ल्ड में फेमस कोपरनिकस है, आर्यभट्ट नहीं है. इंडिया में ही नहीं है तो वहां वहां कहां से होगा. ओके. सो विद दिस वी कंप्लीट द गुप्ता एज. अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज, एंड देन उसके बाद आगे की हिस्ट्री. तो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज यानी गुप्ता पीरियड जब एंड हुआ तो उसके बाद जो वहां पर कुछ डायनेस्टीज आई छोटी मोटी, उसमें से एक गुप्ताज डायनेस्टी भी थी, लेकिन वो ये गुप्ता से उनका कोई लेना देना नहीं, वो दूसरे गुप्ता थे. वो भी एक शॉर्ट लिव्ड थे. मौखारीज वर देयर. तो ऐसे छोटे मोटे कुछ और थे, उनके बारे में करना. और फिर जो मेजर एम्पायर्स नॉर्थ इंडिया में आए, वो पाला
प्रतिहार के, गुर्जर प्रतिहार के थे एंड पालास, और हर्षवर्धन का था इसके बाद, तो उसको हम करेंगे इसके बाद। Okay, so we will stop here.